Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the practical part of the previous lecture. In previous lecture we discussed about inheritance in C++. Here we will practically demonstrate it. So let me first create the a basic C++ program. This is hash include iostream using namespace std, and I will use strings, so include string also, hash include string. Now let me create the main file, the main function, int main return 0. So this is the basic program. Save this program. So this is lecture 13.1. Now let me create a class person. This will be the base or the parent class person. From this I will derive other classes such as student. This is the parent class. Let me take one attribute of the person as name, which is of type string. Another is int age. Now let me create public part of the class and a constructor person. This constructor will take two arguments. One is of string type and it will be named. Another one is int type and this is age. So this dot name will assign name and this dot age will assign age. Now let me take a function that will print these information. So void get person, and this will see out name is this dot name, and int l also see out age is this dot age, int l. Now this is the class. Now let me create another class which will be derived from this class, and the class name is student. So as we studied in the theory that when we want to create a child class, so the syntax is write class child class name colon specifier. So let me first take public specifier here, public, and then person. This is parent class. So now this student class become the child of this parent class. So the student class has attributes as for example string program, which program the student is now studying. The next one is int semester. So these are the two attributes that are specific to student, and the student also has name and age. That's why we created this class as a child class of the person class. Now public constructor for student. So student, and this will also take in here I will have to write first write let string program and int semester. Here this dot program will assign program, and this dot semester will assign semester. But as we said in theory that an object of this class will also be an object of this class. So in main function I will create only object of this class, and using that object I will also initialize the data members of the person class and also will call this function. So that's why we have to pass the parameters for the constructor of the person. ठीक है, जब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का, तो उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर पर्सन के जो डेटा मेंबर्स हैं उनके लिए भी पैरामीटर पास करेंगे, एंड दीज आर स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज। ठीक है, अच्छा
तो ये तो ठीक है, ये तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर हो गया। अब स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम पेरेंट का कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल करेंगे, तो यहाँ पर कोलोन और कंस्ट्रक्टर नेम विच इज़ पर्सन, और इन डेटा मेंबर्स में से जो डेटा मेंबर्स पेरेंट क्लास के लिए है वो हम यहाँ पास करेंगे, एंड दीज आर नेम एंड एज। ठीक है, तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रॉपरली क्रिएट हो जाएंगे। नाउ गिट वाइड गेट स्टूडेंट ओके। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा सी आउट प्रोग्राम इंड एल, और सिमिलरली सी आउट प्रोग्राम के साथ सेमेस्टर इन। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है, ओके। यहाँ पर अभी मेन फंक्शन के अंदर जिस तरह हमने थ्योरी में कहा था कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास आल्सो रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट लेंगे, स्टूडेंट इसके अच्छा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट S1, और इसके कंस्ट्रक्टर को जो पैरामीटर रिक्वायर्ड है वो पैरामीटर हम यहाँ पास करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम इज़ BS कंप्यूटर साइंस, दूसरा पैरामीटर हमारे पास है सेमेस्टर, तो फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 3, और इसके साथ नेम है, तो फॉर एग्जांपल नेम इज़ सईद, और एज जो है फॉर एग्जांपल 30। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये S1 स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट है, आया इसके थ्रू हम गेट पर्सन कॉल कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं। तो S1 डॉट गेट पर्सन, तो ये हमें पेरेंट क्लास के इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। सिमिलरली S1 डॉट गेट स्टूडेंट, तो चाइल्ड क्लास की इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। प्रोग्राम को सेव कर ले, यहाँ से कंपाइल एंड रन कर ले, देख लेते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है। नाउ अगेन इसको रन करते हैं, तो हमें आउटपुट सही मिल रहा है। ठीक है, नेम एज भी मिल रहा है, प्रोग्राम भी मिल रहा है। तो जिस तरह हमने थ्योरी में कहा था कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास आल्सो रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास। अच्छा, हम इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह हमें पता है कि हाँ ये हमारे पास अभी पब्लिक इनहेरिटेंस है, बिकॉज वी हैव यूज द स्पेसिफायर पब्लिक हियर। सो पब्लिक इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, इस पेरेंट क्लास के तमाम पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर नीचे क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाते हैं। मींस ये वाइड गेट पर्सन फंक्शन जो है ये चाइल्ड का भी एक पब्लिक फंक्शन बन जाता है। तो इसको हम यहाँ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं गेट पर्सन। तो अगर हम इस तरह कर ले तो फिर इस स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस एक स्टेटमेंट से हमें ये फंक्शन रिटर्न होगा और इस फंक्शन के अंदर हमने इसको रिटर्न किया है। तो वो ट्राई कर लेते हैं, तो देखें हमारे पास इस तरह काम करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलो कि यहाँ पर क्लास नेम लिखना अच्छी बात है कि पर्सन गेट पर्सन आप इस तरह लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ हो रहा हो और गेट पर्सन ये जो फंक्शन है ये 2-3 क्लासेस में हो, तो फिर यहाँ से पता चलता है कि अच्छा दिस फंक्शन बिलोंग्स टू दिस क्लास और इसको हमने कॉल करना है। सो अभी इसको रन करते हैं, तो देखिए हमें प्रोग्राम आउटपुट ठीक मिल रहा है। नाउ हमें तो पता चल गया कि अच्छा पब्लिक के केस में यहाँ के प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों मेंबर जो है हमारे पास वो नीचे क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हमारे पास यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है वो प्राइवेट यूज़ हो रहा हो, तो फिर ये जो हमारे पास पब्लिक और प्रोटेक्टेड पार्ट होता है पेरेंट का वो नीचे हमारे पास इसका चाइल्ड क्लास का प्राइवेट पार्ट बन जाता है। मींस उन फंक्शन को आप डायरेक्ट बाहर से कॉल नहीं कर सकते। अभी देखें ये हमारे पास है पब्लिक क्लास ऑफ द पेरेंट और पब्लिक फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का प्राइवेट फंक्शन बन जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ इस तरह कॉल कर दूँ तो ये इसने कॉल नहीं होना है,
क्योंकि प्राइवेट डेटा को हम बाहर से डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो देखिए हमें एरर मिल रहा है अगर मैं इस तरह करता हूँ, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है पर्सन का, और ये नीचे जो है हमारे पास चूँकि प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज़ हुआ है तो ये नीचे प्राइवेट बन जाता है, और प्राइवेट जब हमारे साथ बन जाते हैं तो हम इसको इस तरह डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट तो हो गया, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में थ्योरी में हमने कहा है कि पेरेंट के पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों पार्ट चाइल्ड के प्रोटेक्टेड पार्ट बन जाते हैं, और प्रोटेक्टेड पार्ट के प्रॉपर्टी ये है कि पेरेंट के वो हम बाहर से कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसको। देखिए ये चूँकि हम यहाँ पर पब्लिक है, इसका प्रोटेक्टेड पार्ट बन गया, ठीक है, चाइल्ड का, और प्रोटेक्टेड हम बाहर से कॉल नहीं कर सकते तो इसलिए हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड की प्रॉपर्टी है कि अगर पेरेंट में आपके पास प्रोटेक्टेड मेंबर हो तो वो नीचे चाइल्ड क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं in case of protected and public inheritance. So these were the concepts which we have studied in our theoretical lecture, and this was the practical demonstration of these concepts. So if you have any question, please ask in comment, and in the next practical lecture I will demonstrate multiple inheritance, because this is single inheritance and also single level inheritance. ठीक है, जब एक क्लास को हम एक क्लास से डिराइव करते हैं, या जब किसी क्लास को हम सिर्फ एक क्लास से डिराइव करते हैं, मीन्स व्हेन देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास द इनहेरिटेंस यूज इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। और अगर एक की जगह मल्टीपल पेरेंट्स हो तो फिर उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। So keep watching the videos. If you have any question, please ask in the comment. Allah Hafiz.